Welcome to my friends. In this video lecture, we are talking about that main important antibody which are discussing in this immunochemistry. Okay, monoclonal antibodies and polyclonal antibodies. What is the difference between these two? You can see that this is a diagrammatic picture of that these two antibodies. Polyclonal antibodies which are antigen specific. Okay, एक ही एंटीजन पर बहुत सारी एंटीबॉडीज वर्कआउट कर रही है, सो दैट इट इज कॉल्ड दैट एंटीजन स्पेसिफिक. ओके, एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यानी कि ऐसी एंटीबॉडी कि जो पर्टिकुलर वन ही होती है और वो एपिटॉप स्पेसिफिक होती है. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट वन बाय वन. Polyclonal antibodies. Polyclonal antibodies which are using in that immunochemistry, and how can this produce these polyclonal antibodies? Okay, first of all, various types of antigens doses which are injecting into that animals, and these animals which is immunized, and they produce the various types of antibodies through immune system. Okay, and we can get by the help of animal serum. Okay, and polyclonal antibodies, the name suggests that which requires many clones. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज विच आर एंटीजन स्पेसिफिक, यानी कि एक ही एंटीबॉडी एक ही एंटीजन के लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है वो क्या होती है, सीरम के अंदर बनी हुई होती है. दिस आर द एंटीजन स्पेसिफिक. तो ये बात आपको याद रखनी है. एंड if we are talking about the cost of that polyclonal antibodies which are very cheap to produce, but it is a less specific than the other antibodies. Okay, यानी कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर एक एंटीजन के लिए एक ही एंटीबॉडी होगी. ओके, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हुआ है, these are the antigen specific antibodies, so it is a very less specific. Okay, now we are talking about that most important type of antibodies that are called that monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies which are produced artificially in tissue culture. Okay, हमने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की बात एक अलग से वीडियो में हमने की है, तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो देखिए. देन आफ्टर वन गो दिस वीडियो. Monoclonal antibodies, the name suggests that which requires only one single cell clone. क्लोन की बात हो रही है यहाँ पर. ओनली वन सिंगल सेल क्लोन से हम बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हैं. ओके, लेकिन क्या होना चाहिए, ओनली वन सिंगल सेल क्लोन. ओके, तो यहाँ पर क्लोन है, यानी कि क्या होगा कि बी सेल होगा जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज वन क्या होगा, माइलोमा सेल होगा कि जो जिसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, बी सेल को लाइफ स्पैन देगा, और ये दोनों अगर फ्यूजन में आ जाएंगे यानी कि क्लोन बन जाएगा, तो वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से कर सकते हैं. ओके, we know about that hybridomas. Okay, the cancer cell line and B cells. Monoclonal antibodies which are epitope specific and which is important in the screening process. Okay, and used in very important therapeutics. Okay, and these are the more expensive because we are producing on from that one single cell clone. Okay, तो वो desired होना चाहिए. तो हमें desired मिलने के लिए हमें बहुत सारे मीडियाज की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, तो वो मीडिया होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल और HAT मीडियम. ओके, हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन, थाइमिडीन. तो वो सारे मीडियम्स की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि ओनली हमारे जो हाइब्रिड सेल्स है वो ही अगर चाहिए हमें, तो उसे ऐसा मीडिया प्रोवाइड करना पड़ेगा कि
वो ही सेल ग्रो हो, दूसरे कोई भी सेल्स यानी कि जो जिसका क्लोन नहीं हुआ है वो ग्रो ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. Now third types of antibodies is called that recombinant antibodies, okay, which is produced by the molecular methodologies, okay, and which is exciting from the DNA libraries, can be used to produce bacteriophage, okay, and also produce by recombinant cells, okay. तो हम रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज कैसे पैदा कर सकते हैं, तो जब बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया सेल्स के अंदर डालेगा, ओके, तो उसके साथ इंटरेक्शन होकर जो बैक्टीरिया है उसके बॉडी क्या करेगी, रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करेगी और उस एंटीबॉडीज को हम यूज कर सकते हैं, एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट सेल्स के हिसाब से भी हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन. इट इज मच स्मॉलर देन नेटिव एंटीबॉडीज. उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है एज कंपेयर टू अवर नेटिव एंटीबॉडीज. In very few times various types of antibodies which are